Good morning, children. Today, the lesson we are going to start is Madam Rides the Bus. This lesson is about a small girl called Vali, okay, whose full name is Valiamai. Okay, she has a desire to ride a bus. What desire? To ride on a bus. Okay, so this lesson is her planning about the desire, how she plans about the desire to fulfill the desire. Okay, as I have explained already about the author in the last video that I shared with you, and this is a special video on request because you people had some doubt in this lesson. So finally this line to line explanation will clear all your doubts, I hope. Okay, so now there was a girl named Valiamai who was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. Curious means she had many questions. Many questions. जिसको जिज्ञासु भी कहते हैं. She was curious about everything. She wanted to know. Curious are people who have a lot of queries, जिनके दिमाग में हर चीज़ के प्रति प्रश्न होते हैं, बहुत जानना चाहते हैं ये लोग. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. So this is the front doorway of her house. घर में प्रवेश करने के लिए जो मुख्य द्वार होता है. She would stand there and watch the street outside. Street is the lane. Lane. Okay, सड़क, बाहर की सड़क को देखती थी. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके कोई playmates नहीं थे. Playmates means friends, companions. उसके कोई संगी साथी नहीं थे. इस वजह से she had only one thing to pass her time. That was to stand on the street and look outside. But for Vali, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Elaborate means long, extended, and complex. Okay. Whatever complex games children would play, this standing was also equally enjoyable. Enjoyable means entertaining. This is one single word. Entertaining. Entertaining साथ में होगा. यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने डैश लगाकर यहाँ लिखा है. So this standing on the door was as entertaining to her as would be any other game. मतलब जो गेम होंगे बच्चों के मुश्किल थोड़े ट्रिकी गेम्स, उन गेम्स की तरह ही उसको ये गेट पे खड़े होके देखना है एंटरटेनिंग लगता था, उतना ही एंटरटेनिंग लगता था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन. अनकॉमन एक्सपीरियंसेस. एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभूतियाँ, फील, एहसास. बहुत अलग अलग एहसास होते थे उसको यहाँ खड़े होके. बहुत अनुभूतियाँ मतलब बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस, अनुभव मिलते थे लोगों को देख करके, उनकी परेशानियों को देख करके कईयों के बारे में जानने को मिलता था. तो दिस वॉज इंक्रीजिंग हर नॉलेज. इससे उसका ज्ञान बढ़ रहा था इस तरह से, है ना. ओके नाउ, सो द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and the nearest town. Most fascinating means most attractive. सबसे ज़्यादा उसको क्या attract करता था? The bus. Which bus? The bus. बस के बारे में बोला जा रहा that. The bus that traveled between her village and the nearest town. और करीब के जो शहर और उसका विलेज जो था, उसके गांव और पास के शहर से जो आना जाना करती थी बस, गांव से विलेज से शहर को जाती थी और शहर से वापस विलेज को आती थी, वो बस उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. इट वॉज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग टू हर. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. ईच आवर मीन्स every
आर किसे कहते हैं? 60 मिनट का जो टाइम होता है उसको आर कहते हैं, मतलब जैसे जिसे हम 1 घंटा कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एवरी आवर वो बस पहले तो शहर की तरफ जाती थी, फिर वो शहर से लौट के आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। बस जो था हर बार एक नए सेट ऑफ पैसेंजर्स से भर जाती थी। जाते वक्त कुछ और पैसेंजर होते थे, आते वक्त पैसेंजर्स बदल जाते थे। इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। ये जो बस थी ना, ये बस एक सोर्स थी, स्रोत। किस चीज़ का स्रोत थी उसके लिए? अनएंडिंग जॉय। इससे उसे लगातार खुशी मिलती रहती थी, नए नए लोगों को देखना, हर बार कुछ नई चीज़, तो उसको बहुत मज़ा आता था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश crept into her head. Crept means to enter quietly and stealthily, stealthily, ठीक है, stealthily, stealthily मतलब चुपके से घुसना। एक छोटी सी इच्छा, विश मीन्स डिजायर, एक छोटी सी इच्छा उसके मन में चुपके से प्रवेश कर जाती है। क्या है ये इच्छा? into her head and grew there, और ये इच्छा उसके दिमाग में, मन में घर कर लेती है वो और बढ़ने लगती है वहाँ पे। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। ये उस बस पे राइड करना चाहती थी, भले ही एक बार, इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार हो पर उसको उस पर घूमने की इच्छा होती है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग इज एन एडजेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर इज अ कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, दिन ब दिन ये जो इच्छा है वो प्रबल होती चली जाती है, और प्रबल होती है, फिर और प्रबल होती है, until it was an overwhelming desire. Overwhelming means overpowering, मतलब इतनी ज़्यादा ये इच्छा बढ़ जाती है कि अब संभल नहीं रही है। ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो होना मतलब कोई भी भाव अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो उथल के गिरने लगता है। जैसे कि सपोज़ एक ग्लास है पानी का, उसमें हम पानी डाल रहे हैं, किसी जग से डाल रहे हैं, ठीक है। अब सपोज़ ये जग से हम डाल रहे हैं पानी इसके अंदर, अब ये ग्लास यहाँ भरा, यहाँ तक भरा, फिर यहाँ तक भरा, यहाँ तक अगर भर जाएगा, फिर भी कंटिन्यू करेंगे हम डालना तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे ही उसकी इच्छा इतना ज़्यादा बढ़ रही थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, कि एक दिन वो इतनी स्ट्रांग हो गई, शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, शी वॉन्टेड इट टू बी फुलफिल्ड। फुलफिल्ड मतलब वो चाहती थी ये इच्छा जल्द से जल्द उसकी पूरी हो। ओके, नाउ Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully मतलब longingly. Longing किसे कहते हैं? इच्छा भरी दृष्टि, इच्छा भरी दृष्टि को लॉन्गिंग कहते हैं। इच्छा से जो पूर्ण होती है दृष्टि, देखने का जो तरीका होता है जिसमें आपको एक तरह से लालसा नजर आती है, विस्टफुली, दिस इज लॉन्गिंग। विस्टफुली वो देखती रहती है बस की तरफ से, एंड हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, और उन लोगों को भी देखती है जो बस में चढ़ते हैं और उतरते हैं। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट, ओके, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। उन लोगों के फेसेस को देख के, चेहरों को देख के, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग। किंडल मीन्स एनलाइटन, एनलाइटन, या फिर टू बर्न अप और टू लाइट। किसी चीज़ को जैसे होता है ना हवा देना, किसी आग को हवा देते हैं तो वो धधक उठती है, तो उसकी ये इच्छा भी उनके चेहरों को देख करके धधक उठती थी कि नहीं, मुझे अब ये इच्छा उसकी सपने में बदल गई सब, और उनके होप्स, उसकी इच्छा, उसके होप्स, उसके ड्रीम्स जो हैं वो और प्रबल हो जाते थे इन लोगों के चेहरों को देख करके। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout. अगर उसकी कोई सहेली कभी उसे
हैपन टू, कभी ऐसा हो गया कि उसको बस की राइड के बारे में अगर बताने लग जाती कि वो डिस्क्राइब करती हम ऐसे गए थे बस से और ये देखा मैंने रास्ते में, तो वली बहुत जेलस फील करती थी। ठीक है, जेलस इज मेलिशियस। मेलिशियस एक नया वर्ड है जेलसी के लिए। ओके, एंड वो सुनना भी नहीं चाहती थी, एंड शी वुड शाउट, और वो चिल्ला देती थी, चीख करके उसे मना कर देती थी। इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड, ये कहती थी कि तुम तो बहुत प्राउड हो, इतना घमंड घूम के आई हो तो। और नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड का, हालांकि उनको मतलब नहीं मालूम था, लेकिन वो लोग इस बात को तब कहते थे, बट दे यूज्ड इट व्हेन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। पर वो प्राउड वर्ड कब यूज करते थे? डिसअप्रूवल, रिफ्यूजल, किसी चीज़ को अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगर वो बुरा मान रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे। सपोज किसी ने किसी को चढ़ा दिया तो वो प्राउड बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब उनके लिए प्राउड का मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन प्राउड का मीनिंग कुछ नेगेटिव है, जो बुरा है, तो कोई बुरा करेगा तो वो प्राउड बोलते थे। ठीक है, now over many days and months Vali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. Over many days, काफ़ी सारे दिनों तक और काफ़ी सारे महीनों तक वली listened to carefully to the conversation, वली लोगों की कॉन्वर्सेशन को, उनके नेबर्स की कॉन्वर्सेशन को, और जो लोग बस में रेगुलरली ट्रैवल करते थे, द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, उनकी कॉन्वर्सेशंस को, कॉन्वर्सेशंस मीन्स द डायलॉग बिटवीन देम, उनके बीच की वार्तालाप को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती थी। ओके, शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट मीन्स केयरफुली सोचे समझे क्वेश्चंस पूछा करती थी। यहाँ लिखा है, देखो, हियर इट इज रिटन डिस्क्रीट क्वेश्चंस। शी वुड आस्क अबाउट द बस। कई बार लोगों से सवाल भी करती थी। क्यों करती थी? बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक एवरीथिंग क्लियर। वो हर चीज़ को क्लियर करना चाहती थी कि बस में जाने आने के लिए क्या चाहिए, कौन सा समय सही होता है, ये सब कुछ पूछ के अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स। स्मॉल डिटेल्स मीन्स छोटी छोटी बारीकियाँ। ऑल द डेटा, ऑल द फैक्ट्स अबाउट द बस, सारा डेटा उसने इकट्ठा कर लिया, जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन। डिटेल्स यहाँ पे है इंफॉर्मेशन। She gathered all the information. Okay. Now, the town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise. Town was 6 miles away. This is one information. The fare was 30 paise on each side. Means two side it would be 60 paise, which is almost nothing at all. 30 paise और 6 miles. ये बिल्कुल भी कम अमाउंट है उसके लिए, नथिंग है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तो ये ज़्यादा है, छोटी बच्ची है ना। Which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Vali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. Fortune means a great treasure. उसके लिए तो ये एक खजाना है, a great treasure or a big sum of money. एक महीने से दूसरे महीने तक भी वली इतने पैसे नहीं देखती थी। उसके लिए तो ये 30 पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन लोगों को उसने कहता सुना था कि ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, किराया तो बहुत कम है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। शहर जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे, नॉट 1 आवर, 45 मिनट्स, है ना। मतलब 45 कितने होंगे? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मीन्स 1.5 घंटा। Half an 1 hour, 1.5 hour, 1.5 hour, 1.5 hour time it took to go and come back from the town. The trip of the town took 45 minutes. तो 3 डिटेल उसने इकट्ठा कर लिया, 6 miles distance, 30 पैसे कॉस्ट एंड 45 मिनट्स टाइम। कौन कौन से डिटेल्स? डिस्टेंस एंड टाइम एंड अमाउंट ऑफ मनी, जिसको फेयर कह सकते हैं। डिस्टेंस पता किया उसने, टाइम पता किया
and the fair. Okay, these three things she discovered by hearing the conversation of the people. Okay, if it is asked what are the details, you will say distance, fair and time. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she would return home on the same bus. अगर शहर में पहुंच करके अगर उसी बस में वो बैठी रहती है तो उसी बस से वो वापस लौट के आ जाएगी. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus. She went at 1 o'clock afternoon bus and reached the town at 1:45. तो 1:45 पे वो शहर पहुंच जाएगी. And back home by the 2:45. 2:45 तक वो वापस लौट के भी आ जाएगी, क्योंकि अगर 15 मिनट बस रुकती भी है वहाँ पे तो 15 मिनट के बाद 2 बजे शुरू होगी बस, तो 2:45 में वो घर भी लौट के आ जाएगी. ओके, नाउ on and on went her thoughts as she calculated and recalculated. on and on, उसकी सोच बढ़ती ही जाती, आगे 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 वो सोचती जाती, आगे बढ़ बढ़ के. on and on she started thinking and calculated, कैलकुलेट करती फिर recalculate करती, planned and replanned, kept on planning, प्लान करती फिर replan करती कि कैसे करना है. अब उसके बाद part, this is the first part. Okay, now the second part. Well, one fine spring day. One fine spring day. Spring is the season which comes after winter. Winter के ख़त्म होने के पहले, after winter and before the starting of summer, और summer शुरू होने के पहले ये season आता है, spring season. Okay, वसंत ऋतु. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving. Afternoon bus निकलने ही वाली थी. Okay, गांव से निकलने वाली थी, just leaving and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" Small voice means a little child's voice, a little child's voice, बच्चे की आवाज़. एक small voice सुनाई देती है. Was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. Commandingly means as if ordering. किसी को आदेश देने की मुद्रा में उसके हाथ उठ जाते हैं. Okay, commandingly. A tiny hand. Tiny means very small. तो छोटे बच्चे का हाथ कैसा होगा? Very small ही होगा, एक छोटा सा हाथ उठ जाता है. The bus slowed down to a crawl. Crawl मतलब धीरे धीरे बस स्लो हो गई to a crawl. Crawl means to move very slowly like an insect. एक इंसेक्ट की तरह धीरे धीरे रेंगना. ओके, नाउ the bus slowed down to a crawl and the conductor, the bus person who gives you tickets, okay, ticket collector in the bus is called a conductor, sticking his head out the door said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." Sticking his head out. Sticking means popping. अपनी मुंडी, अपनी गर्दन, अपने सर को बाहर निकालते हुए वो कहता है कि चलो जल्दी करो, फिर जो भी है उन्हें जल्दी आने के लिए कहो. "It's me," shouted Valli. "I am the one who has to get on." It's me, मैं हूँ, मुझे ही जाना है. किसको बोलूँ आने के लिए quickly? मुझे ही तो जाना है. But by now the bus had come to a stop. अब तक तो बस रुक चुकी थी. And the conductor said, "Oh really? You don't say so?" अच्छा, ऐसा तो नहीं है, कैसे जाओगी तुम? वो ऐसा कहता है. तो वो कहती, "Yes, I simply have to go to town." हाँ, मुझे बस शहर जाना है. And said Valli, still standing outside the bus, अभी भी बस के बाहर ही खड़ी है. "And here's my money." और ये रहे मेरे पैसे. She showed him some coins. उसे कुछ पैसे दिखाती है वो. Okay, but first you must get on the bus. लेकिन पहले तो तुम्हें बस पे आना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा. And she stretched out a hand to help her up. तो वो हाथ बाहर निकाल देता है, स्ट्रेच करता है, हाथ को बढ़ा देता है.
to help her. To stretch means, stretch का मतलब वैसे तो पुल करना होता है, अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि आओ तुम्हें हेल्प कर देता हूँ. She said, never mind, I can get on by myself. You don't have to help me. I can get on. मैं खुद ही आ सकती हूँ ऊपर बस के, आपको मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं है. The conductor was a jolly sort of fond of joking. Jolly sort means very light-hearted. खुश मिजाज एक आदमी था. जॉली इज जोवियल, JOVIAL. जोवियल मतलब खुश मिजाज व्यक्ति था वो बहुत. फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसे मजाक करना बहुत पसंद था. ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम. माई फाइन मैडम, अरे मेरी प्यारी मैडम. मुझसे फाइन प्यारी नहीं कह सकते, मेरी अच्छी मैडम, मुझसे आप नाराज मत होइए. He said, here have a seat right up there in front. चलो आपकी सीट ले लीजिए वहीं सीधे सामने. Everybody moves aside. Make way for madam. और वो कहता है अरे सभी लोग किनारे हट जाइए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए. वो मजाक कर रहा है. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. कैसा टाइम था दिन का? Slack time. A time when not much work is done. Not of rush. एक रश का टाइम होता है जिसमें हम लोग बहुत हड़बड़ी में होते हैं, और एक विदाउट रश का. तो ये रश वाला टाइम नहीं था. दे वेर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. वो लोग सारे पैसेंजर्स, कितने सारे लोग थे उसमें? 6 और 7 पैसेंजर्स. स्लैक टाइम था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसीलिए रश नहीं था. तो वो लोग सारे लोग वल्ली की तरफ देखते हैं और कंडक्टर के साथ हंसने लगते हैं क्योंकि कंडक्टर मजाक कर रहा है. वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस. शाइनेस मीन्स एम्बैरेसमेंट, उसको शर्म आ जाती है. ये सब उसका मजाक बना रहे हैं. अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, हर किसी की आंख से बच करके वो क्विकली चल करके एम्प्टी सीट पे जा करके बैठ जाती है. शी वॉक टू द एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. So it was finally she was settled on her seat. Now may we start now madam? Can we start now madam? क्या अब हम आपकी सवारी को आगे बढ़ा सकते हैं मैडम? जैसे महारानी को बोलते हैं ना, वैसे उस बच्ची से मजाक कर रहा है कंडक्टर. The conductor asked smiling. Then he blew his whistle twice. हंसता हुआ पूछता है, फिर अपने विसल को, अपने हाथ में जो विसल होती है सीटी, उसको बजाता है. एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर. रोर मीन्स अ लाउड साउंड. एक लाउड साउंड करते हुए बस आगे बढ़ जाती है. नाउ इट वॉज अ न्यू बस. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट एंड सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स. सो इट वॉज अ वाइट कलर बस. ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग. इट वॉज अ शाइनिंग वाइट कलर एंड with some green stripes along the sides. Side में कुछ green stripes बनी हुई थी. Okay. Now inside the overhead bars shone like silver, and inside the overhead bars, suppose this is the interior of a bus, so here the seats are there. Okay. And above the seat there is a bar like this. These bars were all gleaming steel bars. चांदी की तरह चमक रहे थे because they were made of steel. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. Directly in front of Valli. Valli जहाँ बैठी थी, वो suppose ये वाली सीट है, उसके सामने एक क्लॉक बनी हुई थी. विंडशील्ड, above the windshield. विंडशील्ड कौन सी होती है? जिससे कि हवा आने से अंदर बचती है. तो विंडशील्ड के बगल में एक क्लॉक लगी हुई है, सुंदर सी क्लॉक. The seats were soft and luxurious. The seats were soft and luxurious, comfortable. Valli devoured everything with her eyes. Devoured means to gulp down. हर चीज़ को निगल जाना, इसको कहते हैं devour. तो हर चीज़ को वो किससे निगल रही है? अपनी आँखों से. अपनी आँखों से हर चीज़ का लुत्फ उठा रही है. डिवाउर जल्दी जल्दी खाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ वो जल्दी जल्दी किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है? अपनी आँखों से जल्दी जल्दी सारे दृश्य देख रही है. बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवस ब्लाइंड. कैनवस ब्लाइंड मीन्स कैनवस का कर्टन है,
इट इज़ अ कर्टन। एक कर्टन से उसका व्यू जो है वो कट ऑफ हो जाता है, व्यू में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। जैसे कि वो इस हाइट की बच्ची है, ठीक है, ये वल्ली है, सपोज ये वल्ली बैठी है। अब ये विंडो है, विंडो इतनी ऊंची है, तो यहाँ तक कर्टन लगे हुए हैं, तो उसकी नज़र तो नहीं जा पा रही है बाहर देखने से, उसकी आइज़ कट ऑफ हो रही है, उसको कैनवस ब्लाइंड की वजह से दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ओके, तो द विंडो का लोअर पार्ट जो है इससे कवर्ड था कैनवस ब्लाइंड से, जिसकी वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। पियर्ड मीन्स पीप्ड, झांकती है वो ब्लाइंड के ऊपर। ब्लाइंड मीन्स कर्टन के ऊपर झांकती है सीट पे खड़ी होकर के। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल मतलब, कैनल इज अ स्मॉल स्ट्रीम कट आउट फ्रॉम द मेन रिवर। सपोज ये बड़ी नदी है, इसमें से एक छोटी सी नदी को, नाले को मैनुअली, मैन मेड तरीके से निकाला अगर जाए, उसे कैनल कहा जाता है। तो वो लोग अभी कैनल के बगल से गुजर रहे थे। द रोड वॉज वेरी नैरो। सड़क कैसी थी? नैरो, नॉट वेरी वाइड, बहुत चौड़ी नहीं थी। वाइड मतलब चौड़ी, या फिर ब्रॉड मतलब चौड़ा, लेकिन ये चौड़ा नहीं है, सकरी सड़क है। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. क्या क्या है? कैनल है, उसके बगल बगल पाम ट्रीज हैं। पाम मतलब नारियल की तरह होते हैं, लेकिन पत्ते वैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ है पाम। ओके, ग्रासलैंड्स में देर हरे हरे खेत हैं, फील्ड्स है घास से भरी हुई, डिस्टेंट माउंटेन्स दूर में, बहुत कुछ दूर में पहाड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे, एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान दिख रहा है। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देयर एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। एक साइड का तो ये हो गया palm trees, grassland, blue sky, mountains. On the other side there were deep ditch, बहुत गहरा एक गड्ढा, ditch. Okay, ditch is a very big hole, big deep hole, WHOLE hole, HOLE hole, बहुत गहरा गड्ढा है। और फिर उसके बाद acres and acres means huge numbers. Acre is a unit to measure land, unit to measure land. जैसे हम दूध को लीटर्स में मेजर करते हैं, किसी चीज़ को केजी किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, इसी तरह से लैंड को एकर्स में मेजर करते हैं। एकर्स बहुत ज़्यादा ज़मीन, ग्रीन 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 एज फार द आईज कुड सी, हरियाली ही हरियाली थी जहाँ तक नज़र देख पा रही थी। ओह, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये तो कितना सुंदर है। वंडरफुल इज, दिस स्टेटमेंट इज एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। एक्सक्लेमेटरी मतलब सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं। विस्मय आदि बोधक, विस्मय मतलब बहुत उसको आश्चर्य हो रहा है देख के, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन, इतना वंडरफुल। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अचानक एक आवाज़ आती है जो कहती है कि अरे तुम्हें ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ। ओके, सिटिंग डाउन शी लुक्ड एट हु हैड स्पोकन। बैठते ही वो देखती है कि किसने बोला। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. Annoyed means angry और irritated. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो वाकई में उसके बारे में concerned था। concerned मतलब worried, चिंतित था कि वो गिर पड़ेगी छोटी सी बच्ची। उसने ऐसा कहा, लेकिन उसको ये अच्छा नहीं लगा, बल्ली को अच्छा नहीं लगा, उसको एंग्री फील हुआ, इरिटेटेड फील हुआ। There's nobody here who's a child, she said haughtily. Haughtily means proudly बोलती है कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। I have paid my 30 पैसे like everyone else. बाकियों की तरह मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं किराए के, तो मैं बच्ची कैसे हुई? यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसा कहती है वो। The conductor chimed. Chimed मतलब चहकता हुआ बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे सर, ये तो बहुत बड़ी मैडम है, बिल्कुल बड़ी हो गई है, समझदार है। डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आपको लगता है छोटी सी बच्ची, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची इतना किराया दे के शहर अकेले जा सकती है? कंडक्टर इज अगेन मेकिंग फन। फिर कंडक्टर मजाक कर रहा है। किससे मजाक कर रहा है? वली के बारे में मजाक कर रहा है।
एल्डरली मैन से। ये एल्डरली मैन जिसने वली को मतलब वार्न किया था कि बैठ जाओ। क्यों वार्न किया? बिकॉज चलती हुई बस में खड़े होने से वली गिर सकती थी, तो वो वाकई चिंतित था उसके बारे में, बट वली को ये बात पसंद नहीं आई। वली शॉट एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर। गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखती है एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखो, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है, मैंने तो पैसे दे दिए। गिव मी माई टिकट। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। बेचारा कंडक्टर फिर मजाक करते हुए कहता है, हाँ हाँ मैडम, मैं याद रखूंगा। मैडम नहीं कहता है इस बार। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन द लाफ्टर। सभी हंसने लगते हैं और धीरे धीरे वली भी लाफ्टर में शामिल हो जाती है, हंसी में शामिल हो जाती है। वो भी धीरे धीरे समझ पाती है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। शुरू में नहीं समझ पाई थी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। एक टिकट पंच करता है कंडक्टर अपने मशीन में से और उसके हाथ में थमा देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव बीन पेड फॉर अ सीट। आराम से बैठो और अपने आप को कंफर्टेबल रखो। खड़े क्यों होके क्यों जाना जब अपनी सीट के लिए तुमने पैसा दिया है। तो ये बहलाते हुए समझा रहा है लड़की को। सीधी बात तो उसको समझ में नहीं आ रही है, तो बहला रहा है कि चलो तुमने पैसे दिए ना, तो पैसे देकर के सीट में बैठो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगैन। क्योंकि मैं खड़े रहना चाहती हूँ। और फिर से खड़े होते हुए बोलती है, बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न एंड हिट्स अ बम्प। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। कहता है पर अगर बस चली, अचानक से तेज घुमाव आएगा तो तुम खड़ी हो बस में, तुम गिर जाओगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुम अगर गिरी तो बहुत तेज चोट लगेगी। इट विल हिट्स अ बम्प। बम्प मतलब रास्ता ऐसा होता है स्मूथ, कभी कभी ऊंचाई आ जाती है रास्ते में, तो इसको बम्प कहते हैं। ऐसा बम्प आएगा तो तुम गिर भी सकती हो। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। इरिटेबली मीन्स फिर एनॉयड है वो, एनोइंग, चिड़चिड़ेपन से बोलती है। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। सही बात है, 8 साल की हो, मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ, माफ करो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर्स आ गए अंदर और कंडक्टर कुछ देर के लिए बिजी हो गया, क्योंकि पैसेंजर आएंगे, ही हैज़ टू गिव देम टिकट्स नाउ। Afraid of losing her seat, Wali finally sat down. She was afraid to lose her seat, so she finally sat down. She thought that someone will come and sit on her seat. So this is an experience again she is getting. She is getting an experience that when you pay for something, you own that thing and someone might snatch it from you. कोई तुमसे वो छीन सकता है, तो वो अपनी सीट को बचाने के लिए बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. एक बड़ी सी औरत आकर के उसके बगल में बैठ गई। Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again. पूछती है, क्या तुम अकेली हो बेटा? Wali found the woman absolutely repulsive. Repulsive means she did not like her. She felt repelled. Repelled मतलब किसी चीज़ से हम आकर्षित होते हैं, और आकर्षित का ऑपोजिट होता है विकर्षण। तो हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं, मन नहीं करता उसके पास आने का। तो वैसे ही उसको इस औरत से रिपल्सिव फील होता है, रिपेल्ड, शी फील्स रिपेल्ड। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। ईयर लोब्स मतलब कान में बहुत बड़े बड़े छेद थे, इसीलिए उसको ये औरत पसंद नहीं आ रही है। अब बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों को अगर कोई पसंद नहीं है तो कोई भी कारण हो सकता है। शी हैड बिग ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम। और कितने बुरे से ईयरिंग्स पहने हुए थे इसने। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग। बीटल नट कौन सा होता है? सुपारी। वो सुपारी चबा रही थी तो उसको वो पसंद नहीं आ रहा था, उसकी स्मेल से द स्मॉल गर्ल वली वाज फीलिंग रिपल्स्ड। एंड द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स। द बीटल जूस, वो पान का जो मुंह में भरा हुआ है लिक्विड, दैट वॉज थ्रेटनिंग, ऐसा लग रहा था कि वो धमकी दे रहा है। इट इज अबाउट टू कम आउट फ्रॉम हर लिप्स एनी टाइम, इट विल स्पिल। स्पिल मीन्स टू फॉल डाउन, टू फॉल डाउन।
सो इट वॉज थ्रेटनिंग, उसके पान की जो पीक है अंदर वो निकलने ही वाली थी, ऐसा लग रहा था. दैट इज वाई वली डिड नॉट लाइक दिस वुमन. ओके, and that liquid beetle juice was any time, any moment about to come out, any moment it was about to fall down from her mouth. किसी भी क्षण वो निकल सकता था. Who could be so sociable, who could be sociable with such a person? Sociable means friendly. कौन ऐसी लेडी के साथ फ्रेंडली हो सकता था? Nobody could be friendly with such a creature. Okay, yes, I'm traveling alone, she answered curtly. Curtly means directly and sharply. And sharply, बहुत सख्त मिजाज से कहती है. यस, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ. डिसप्लेजर, ना खुश होते हुए, वो बताना नहीं चाह रही लेकिन फिर भी कहती है आई एम ट्रैवलिंग अलोन एंड आई हैव गॉट अ टिकट. और ये भी बताती है कि मेरे पास एक टिकट भी है. यस, शी इज़ ऑन हर ओन वे टू द टाउन. शी इज़ ऑन हर वे टू द टाउन. हाँ, ये अपने पैसे से अपने शहर को जा रही है. एंड द कंडक्टर सेड विथ अ 30 पैसे टिकट, और 30 पैसे की टिकट भी ली है इन्होंने. ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली. वली कंडक्टर को डांटते हुए कहती है, स्कोल्डिंगली. डांटते हुए क्या कहती है? आप अपना काम क्यों नहीं करते? मुझसे कोई बात करे तो आप बीच में बोल देते हैं. एंड देन द कंडक्टर बट शी लाफ्ड ऑल द सेम. और फिर ये कह करके हंस देती है कि आप अपना काम क्यों नहीं करते. फिर उसे हंसी आ जाती है और कंडक्टर भी हंस देता है. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल. ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस. बेकार की बात को कंटिन्यू रखती है वो लेडी. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? क्या इतनी छोटी बच्ची का अकेले आना सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या आपको पता है कि कहाँ जाएंगे आप शहर में? किस जगह जाना है? दिस इज द ओल्ड वुमन, शी इज आस्किंग many questions to Valli and Valli is not liking it. Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? ये सब क्या तुम्हें पता है? You needn't bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. वली उसको डांटते हुए कहती है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं. You needn't care about me. Needn't worry about me because I can take care of myself. मैं अपनी चिंता खुद कर लूँगी. और अपना चेहरा घुमा के विंडो की तरफ देखने लगती है. स्टेयरिंग आउटसाइड. स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग कॉन्स्टेंटली विदाउट ब्लिंकिंग. ING. ओके, ब्लिंकिंग द आईज. आँख को बिना ब्लिंक किए, बिना टमकाए, बिना झपकाए, पलक बिना झपके किसी तरफ गौर से देखते जाना, इसको कहते हैं स्टेयरिंग. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ इट. सो हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली जर्नी कितना केयरफुली उसने प्लान किया था. पेन्सटेकिंगली मीन्स विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, है ना, बहुत मेहनत से. इलेबोरेट प्लान्स उसने बनाए थे मेहनत से. इलेबोरेट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लान्स. उसके लिए ये सब प्लान बनाना, शहर जाने का प्लान, छोटी सी बच्ची के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्लान है, बहुत ही मुश्किल. शी हैड टू मेक ऑल दीज प्लान्स. शी हैड थ्रिफ्टिली मीन्स केयरफुली उसने बहुत पैसे बचाए थे. सेव्ड स्ट्रे कॉइन्स, सेव किए थे पैसे. स्ट्रे कॉइन्स मतलब इधर उधर पड़े हुए. लाइंग हियर एंड देयर. स्ट्रे मतलब लाइंग हियर एंड देयर, इधर उधर पड़े हुए छोटे छोटे कॉइन्स उठाती थी. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, अपनी सारी इच्छा को. टेम्पटेशन मीन्स ऑल हर ग्रीड, अपने सारे लालच को कंट्रोल करके पैसे बचाती थी. लालच किस चीज़ का होता है बच्चों को? चॉकलेट्स का, पेपरमिंट्स, ओके, टॉयज, बलून्स, इस तरह के लालच को रोकती थी. एंड द लाइक. एंड फाइनली शी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे. 60 पैसे भी उसने बचाए. हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर.
कितना मुश्किल था ये सब कुछ करना, खास करके विलेज के फेयर वाले दिन, मेले वाले दिन जो पैसे मिले थे, दैट मनी शी हैड सेव्ड बट शी हैड रेजोल्यूटली मीन्स stifled, resolute means firm in decision, resolute means firm in decision, अपने डिसीजन में फर्मली उसने डिसीजन लिया था, बिल्कुल कठोर होकर के डिसीजन लिया। शी हैड स्टिफल्ड मतलब टू चोक, किसी चीज का गला घोटना, अपने इच्छाओं का गला घोटा था उस दिन उसने बड़े मुश्किल से विलेज फेयर में। What was the desire? The strong desire to take a ride on the merry-go-round. merry-go-round मतलब ऐसा एक झूला होता है मेले में जिसके चारों तरफ इस तरह से और बीच में एक ऐसा बहुत बड़ा रॉड होता है ना, इसमें बच्चों को बैठाया जाता है, कहीं गाड़ी कहीं साइकिल, और ये ऐसे गोल गोल घूमता है, मैरी गो राउंड। सो ये मैरी गो राउंड में बैठने की इच्छा, सबसे प्रबल इच्छा को उसने कंट्रोल किया था। इस तरह से बड़ी मुश्किल से पैसे बचाए थे। नाउ आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। व्हेन शी हैड सेव्ड द मनी, उसकी दूसरी प्रॉब्लम थी कि घर से कैसे निकले। स्लिप आउट ऑफ हाउस मीन्स सीक्रेटली मूव आउट। सीक्रेटली बाहर कैसे निकले घर से बिना किसी को बताए। किसी को बताएगी तो नोबडी विल लेट हर गो, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। ये भी वो मैनेज कर लेती है, इसमें ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं होती है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। 1 बजे से 4 बजे तक लगभग उसकी मम्मी हर दिन सोती थी, उस समय वो समय निकालती है। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। एक्सकर्शंस मीन्स एडवेंचरस जर्नी के लिए वली यही समय ढूंढ निकालती थी, क्योंकि इस समय उसकी मम्मी सो रही होती थी। एंड शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने घर के दरवाजे से खड़ी होके देखती है, उसी समय देखती थी, ठीक है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, और कभी कभी गांव में भी घूमने के लिए निकल जाया करती थी। वेंचर्ड मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंचर्ड? इज टू, देखो यहाँ लिखा है, वेंट कॉशियसली एंड करेजियसली। वेंचर का मतलब होता है कॉशियसली, ध्यानपूर्वक, और हिम्मत जुटा करके विलेज में घूमने के लिए निकल जाती थी कभी कभी। कॉशियसली मतलब बहुत सतर्कता पूर्वक कि मम्मी को पता ना चले। एंड दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। यही समय वो अपने विलेज के बाहर के एक्सकर्शन के लिए भी यूज कर सकती है, ऐसा उसने डिसाइड किया। द बस रोल्ड ऑन, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. The bus rolled means moved. कहाँ कहाँ जाती है बस? Cutting across a bare landscape means land area. एक ऐसा लैंड एरिया बिल्कुल जो खाली पड़ा हुआ, उस लैंड एरिया से गुजरती है उसकी बस। Rushing through a tiny hamlet means small settlement ऑफ हट्स, छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, छोटा सा कस्बा है हैमलेट, ओके, छोटा सा एंड पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप। ऑड मतलब अजीब, स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज सी अजीब सी दुकान, वे साइड शॉप। वे साइड मतलब सड़क के किनारे की दुकान के पास से गुजरती है उसकी बस। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल। कभी कभी लगता था कि बस जो है इतनी तेजी से जाएगी, दूसरे किसी व्हीकल को, जो सामने एक छोटा सा व्हीकल दिखाई दे रहा है उसको निगलने वाली है, ऐसा लगता था उसे जब बस आगे बढ़ती थी, है ना। कभी किसी व्हीकल को दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और अ पेडेस्ट्रियन, कभी किसी पैर से चलने वाले को, पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैदल चलने वाले लोगों को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो कभी किसी पेडेस्ट्रियन को जो रोड क्रॉस कर रहा होता था, ऐसा लगता था मानो बस उन लोगों को निगलने वाली है, ओके। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, पर देखते ही देखते बस तो स्मूथली पास हो जाती थी, किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी। लिविंग ऑल द ऑब्स्टैकल्स सेफली बिहाइंड, सारे ऑब्स्टैकल्स जो उसके रास्ते में जो भी रोड़े आते थे
बस के रास्ते में, चाहे वो कोई पेडेस्ट्रियन हो, चाहे वो कोई आने वाली गाड़ी हो उसकी तरफ, सभी को सेफली पीछे छोड़ते हुए बस आगे बढ़ जाती। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, बस जब आगे बढ़ती है तो जो चीज़ें यहाँ किनारे किनारे खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो स्थिर हैं चीज़ें, हम जब आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि वो भी दौड़ी दौड़ी हमारी तरफ आ रही हैं। तो ऐसा लगता था कि पेड़ जो हैं दौड़ दौड़ करके उनकी तरफ आ रहे हैं, बस की तरफ। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, पर ये पेड़ तब रुक जाते थे, सिंपली स्टॉप हो जाते थे जैसे ही बस उन तक पहुंचती थी। उन पेड़ों तक, जो पेड़ लगते थे कि वो आ रहे हैं दौड़ करके, उन पेड़ों तक पहुंचने पर वो स्थिर दिखाई देते थे। ऐसा होता है, सभी लोग जब कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। The bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. ऐसा लगता था कि वो पेड़ रुक जाते थे, हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब कुछ भी करने में जो सक्षम नहीं होते वो हेल्पलेस होते हैं। वो मूव नहीं कर सकते, बस तो मूव कर सकती है। तो ऐसा लगता था कि एक मोमेंट के लिए वो किनारे खड़े हो जाते थे और बस उनको, उनसे आगे दूसरी डायरेक्शन में, अदर डायरेक्शन, पेड़ तो यहाँ है, हम जब इधर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब हम पेड़ तक पहुंच जाते हैं तो लगता है ये पेड़ रुक चुका है, और रुकने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, वो पेड़ वहीं रह जाता है। ऐसा महसूस होता है ना, ऐसा ही कुछ वली को भी फील हो रहा है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मीन्स जॉय, खुशी के मारे सडनली वली अपने हाथ को तालियों में बजाने लगती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, देखो पूंछ ऊपर है, एक छोटी सी गाय जिसकी पूंछ एकदम ऊपर, और वो दौड़ने लगती है। वेरी फास्ट, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बहुत तेजी से दौड़ती है, सड़क के बीचों बीच दौड़ती है। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस स्लोड टू अ क्रॉल, क्रॉल मतलब बस धीरे धीरे रुकने लग जाती है। ठीक, क्रॉल, आई एक्सप्लेन यू क्रॉल, टू मूव वेरी स्लोली लाइक एन इंसेक्ट, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगैन एंड अगैन, और ड्राइवर जो है अपनी हॉर्न को तेजी से बजाने लगता है। क्या होगा तेजी से हॉर्न बजाने पर? एनिमल को हटाने के लिए, ताकि साउंड से ही एनिमल भाग जाए। द बस स्लोड डाउन बट द मोर ही हॉन्क्ड टू ब्लो हॉर्न को कहते हैं हॉन्क्ड। जितना ज्यादा वो अपनी हॉर्न को बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, जानवर जो था ये और ज्यादा डर जाता। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड। एंड फास्टर इट गैलप्ड, गैलप्ड मतलब ये होता है गैलपिंग। ये जो उनके खुरपे होते हैं जब ये दौड़ते हैं तो इनमें से आवाज आती है, दिस इज द गैलपिंग साउंड। गैलपिंग इज अ साउंड मेड बाय द हूफ्स, हूफ्स, ये हूफ्स है इसके, इस हूफ्स से जो साउंड होता है उसको गैलपिंग कहते हैं। हूफ्स की स्पेलिंग है हूफ्स, HOOVES, हूव्स। हूव्स से आने वाली आवाज को गैलपिंग कहते हैं। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल सामने बस के आ जाती है अपने गैलप करते हुए। उसको समझ नहीं आ रहा था जाना किधर है, बस से दूर ना जा करके वो बस के और सामने आ जा रही थी। ये सब कुछ देख करके वली को बहुत मजा आता है, वो बहुत हंसती है। Somehow this was very funny to वली, किसी भी तरह से ये चीज़ें वली को बहुत ज़्यादा फनी लग रही थी। फनी क्यों लग रही थी? बच्ची है, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा आ सकता है। बिकॉज शी इज़ इनोसेंट, क्योंकि वो बहुत ही मासूम है। इनोसेंट, INNOCENT, ओके। शी लाफ्ड until there were tears in her eyes, इतना हंसती है जब तक कि उसकी आंख में आंसू ना आ जाते हैं, वो हंसती ही चली जाती है। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow. Hey lady, hey lady मतलब क्योंकि वो मैडम है, बड़ी उम्र की है, तो उसको कहता है अरे मैडम आप तो बहुत हंस चुकी हैं, अब कल के लिए कुछ बचा लीजिए। Better save some for tomorrow. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. फिर बस के आगे से एट लास्ट काऊ हट जाती है और धीरे धीरे बस कहाँ पहुँच जाती है? एक रेल रोड क्रॉसिंग के पास। सिग्नल क्रॉसिंग होती है ना, जहाँ से रेलवे की लाइन अगर पास होती है रोड के बीच से, तो उसे सिग्नल क्रॉसिंग कहते हैं। सिग्नल क्रॉसिंग के पास आ जाती है उसकी बस, रेल रोड क्रॉसिंग।
A speck of a train could be seen in the distance. दूर से उसे एक speck. Speck means a small particle. स्मॉल पार्टिकल को स्पेक कहते हैं. दूर से ट्रेन एक छोटे से टुकड़े की तरह नजर आती है. डिस्टेंस पे थी, इसीलिए डिस्टेंस मतलब दूरी पे थी. ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. जैसे जैसे पास आती है वो बड़ी होती चली जाती है. लगता है कि उसकी साइज इतनी से इतनी हो गई, इतनी से इतनी हो गई, इतनी से इतनी हो गई. बगल में आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिखाई देगी ना ट्रेन. दूर में तो छोटी दिखती है. तो बिगर एंड बिगर होती जा रही है. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट. फिर क्रॉसिंग गेट के पास से गुजर जाती है. विथ अ ट्रिमेंडस रोर. ट्रिमेंडस मीन्स वेरी लाउड साउंड. ट्रिमेंडस रोर. रोर का मतलब साउंड. बहुत ही तेज साउंड से वो ट्रेन वहाँ से गुजरती है. एंड रैटल. रोर भी होता है, रैटल भी होता है. रैटल मतलब जो पटरियाँ हैं, जमीन में बिछी हुई पटरियाँ, उसमें से एक अलग सा साउंड होता है, उसको रैटलिंग साउंड कहते हैं. रैटलिंग साउंड इज मेड ऑफ मेटल. मेटेलिक साउंड. मेटेलिक साउंड जो होता है उसको रैटल कहते हैं. इस रैटलिंग साउंड के साथ शेकिंग द बस. बस भी बिल्कुल कांप जाती है. शेकिंग मीन्स वाइब्रेटिंग. बस वाइब्रेट हो जाती है बिल्कुल अपनी जगह पे ही. इस तरह से ट्रेन गुजर जाती है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. फिर बस आगे गई ट्रेन स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट. फिर ट्रेवर्स्ड. ट्रेवर्स्ड मीन्स ट्रेवल्ड. फिर वो ट्रेवल कहाँ से करती है बस? एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट में से होती हुई जाती है. एक बिजी रास्ता है जिसमें शॉपिंग के लिए, शॉपिंग वाली सड़क है जहाँ पे बहुत दुकानें हैं. टर्निंग एंड एंटर्ड इनटू अ वाइडर थॉरोफेयर. टर्न करती है फिर एक वाइडर थॉरोफेयर. थॉरोफेयर मतलब चौड़ी सी सड़क पर आ जाती है. एंड सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. वहाँ कितने बड़े बड़े ब्राइट. ब्राइट मीन्स लाइटेड. बहुत रोशनी से भरे हुए जो दुकानें हैं, भरी हुई दुकानें उसको दिखाई देती है. बहुत चमकीली दुकानें. व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ों का डिस्प्ले है बिल्कुल चमकते हुए. शाइनिंग. ग्लिटरिंग मीन्स शाइनिंग. चमकीले तरीकों से कपड़ों को डिस्प्ले में लगाया हुआ है. एंड अदर मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज मतलब और भी चीज़ें जो बेचने के लिए वहाँ रखी गई है, सेल के लिए. सच बिग क्राउड्स. और कितनी ज़्यादा भीड़. इतनी भीड़ उसने गाँव में कभी नहीं देखी. इतनी बड़ी दुकानें नहीं देखी. देख के सब चीज़ को वो आश्चर्यचकित हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है. स्ट्रक डम विथ वंडर. आश्चर्यचकित होना. वंडर से वो आश्चर्य से चुप हो जाती है. डम्ब मतलब कैन नॉट स्पीक अ वर्ड. कुड नॉट स्पीक अ वर्ड. वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती, इतनी आश्चर्यचकित हो जाती है. वल्ली गैलप्ड. सो gaped at everything. Gaped means to look with a wide open mouth. मुंह फाड़ करके देखना. मुंह खुला का खुला रह गया है एकदम आश्चर्य में और वो देखती ही जा रही है. Then the bus stopped and everyone got off except Wali. फिर बस रुक जाती है और सब उतर जाते हैं सिर्फ वली को छोड़ करके. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. कंडक्टर ने बोला, क्या आप उतरने के लिए रेडी नहीं है? आप क्यों नहीं उतर रही हैं? उतर जाइए. दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू. यहीं तक चल सकते हैं हम 30 पैसे में. 30 पैसे में आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकती आगे. नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. वली ने कहा, नहीं, मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. फिर से 30 पैसे निकालते हुए कंडक्टर को दे देती है, उसके हाथ में थमा देती है. Why is something the matter? क्यों, कोई बात है क्या? No, nothing the matter. कोई बात नहीं है. I just felt like having a bus ride, that's all. मुझे बस एक बस में राइड चाहिए थी, इतना ही, अदरवाइज कोई भी बात नहीं है. और मैं इसी बस से लौट जाना चाहती हूँ. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्या तुम बाहर के नज़ारे नहीं देखना चाहती? All by myself? Oh, I would be much too afraid. अकेले? अरे मुझे तो बहुत डर लग जाएगा बाहर जाने में. Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus? लड़की के बात करने के तरीके को देख करके वो कंडक्टर बहुत अम्यूज्ड हो जाता है. अम्यूज्ड मीन्स डिलाइटेड.
है ना, खुश हो जाता है, हंसी आ जाती है उसे। अम्यूजिंग, अभी तो ये डर नहीं रही थी, अभी इसको डर लगने लगा है। सो शी सेड, वेरंट यू नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट अबाउट, ही आंसर्ड। उसने कहा कि तुम्हें बस में आने में डर नहीं लगा और बाहर जाने में डर लग रहा है? तो बोलती है, बाहर बस में आने में कैसा डर, उसमें क्या डरने की बात है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे उस स्टॉल में जाके कुछ पी लो वहाँ से। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं वो ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ। वो इस बात पे भी राजी नहीं होती है। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मेरी टिकट दे दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये ट्रीट तो मेरी तरफ से होगी, तुम्हारे कोई पैसे नहीं लगेंगे कोल्ड ड्रिंक पीने में। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। फर्मली मीन्स स्ट्रिक्टली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देती है। वो किसी अनजान आदमी से कोई फेवर नहीं लेना चाहती है, बहुत समझदार बच्ची है। हालांकि उसने एक गलती की अकेले आने की, लेकिन वो बहुत अलर्ट है, समझदार है, ऑनेस्ट भी है। वो अपने पैसों के अलावा किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहती है। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। श्रग्ड मतलब टू a gesture to show carelessness। एक जेस्चर होता है बॉडी का जिससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें परवाह नहीं होती। जब हम कंधों को ऐसे झटकते हैं ना ऊपर की तरफ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उसे श्रग कहते हैं हम लोग, श्रग्ड। ओके, तो उसने श्रग किया अपना शोल्डर कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने तो पूछ लिया, तुम्हें चाय पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ पी लो, नहीं अगर पीना है तो कोई बात नहीं, चलो। नाउ द पार्ट 4, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड पार्ट 1, 2 and 3 and now the fourth part. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढेगी नहीं? No no, no one will be looking for me, she said. नहीं नहीं मेरे को कोई नहीं ढूंढेगा। The bus started and again there were the same wonderful sights. बस फिर से चालू हो गई। अब कहाँ जा रही है? शहर से विलेज की तरफ जा रही है बस। अब कितने टाइम और लगेगा? 45 मिनट्स और लगेगा। तो वो बस जब उसके घर की तरफ जाने लगती है, उसको वही सुंदर सुंदर दृश्य, वंडरफुल, अम्यूजिंग चीज़ें दिखाई देती है। वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, बिल्कुल भी वो बोर्ड नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीवन एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी तरह की एक्साइटमेंट से, एक्साइटमेंट मतलब हर्ष, उल्लास, उसी तरह के उल्लास से वो हर चीज़ का सामने से आती, हर चीज़ का सामना करती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी बोर नहीं फील हो रहा है। शी फेल्ट दैट द फर्स्ट टाइम में जितना अच्छा लगा था उतना ही अच्छा उसे दोबारा भी लग रहा है। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, रोड के किनारे उसको सडनली एक यंग काउ मरी हुई मिली। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, वहीं मरी हुई थी जहाँ किसी तेज़ी से चलते हुए व्हीकल ने, व्हीकल मतलब किसी गाड़ी ने उसको कुचल दिया होगा। ठीक है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip toward town? हम जब टाउन की तरफ आ रहे थे विलेज से, यही वाली गाय हमें रास्ते में मिली थी ना जो हमारी बस के आगे आ रही थी। She asked the conductor, कंडक्टर से पूछती है। The conductor nodded, कंडक्टर सर हिलाता है। And she was overcome with sadness, और वो बहुत दुखी हो जाती है। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. कुछ ही समय पहले जो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर एक जीव के रूप में, इतना प्यारा सुंदर जीव था जिसमें जीवन था, अब वो अपनी सारी खूबसूरती खो चुका है, कुचल गया, डेंजरस बन गया है, उसका जीवन उसके पास से चला गया है। नाउ इट इज़ लुकिंग हॉरिबल, हॉरिबल मतलब डेंजरस। अब इसे देख करके डर लग रहा है बच्ची को, बिल्कुल डर लग जाता है कि मरने के बाद ऐसा हो जाता है इंसान। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, कितना डरावना दृश्य था वो। लेग्स स्प्रेड, पैर गाय के बिल्कुल ऐसे स्प्रेड हुए पड़े हैं ना। एंड
लेग्स स्प्रेड इगल्ड मतलब पैर उसके फैले पड़े हैं ज़मीन पे। अ फिक्स स्टेयर, आंखें उसकी एक जगह फिक्स हो गई है, उसमें कोई जान नहीं है गाय की आंखें। एंड लाइफलेस, ब्लड ऑल ओवर, हर जगह ब्लड और लाइफ भी नहीं है अब उसमें। ये एक डेंजरस चीज़ बन गई। अब जो कुछ समय पहले इतना खुशी, इतना जॉय, शी वॉज इन ग्ली याद है तुम्हें? ग्ली, जिसको देख करके वो अभी तक बहुत खुश हो रही थी, है ना, वो अब बिल्कुल उसको डरावनी चीज़ लग रही है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। हॉन्टेड मतलब कैप्चर्ड, उसके दिमाग में घर कर गया। क्या? इस काउ की डेड बॉडी का दृश्य उसके दिमाग में घर कर गया। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, अब उसका उल्लास कम होता नजर आ रहा है, अब उसमें उल्लास बिल्कुल भी नहीं है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, वो अब विंडो से बाहर बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, इसी तरह से वो बैठ जाती है सीट में स्टिक होके। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और उसकी विलेज बस फिर 3:40 में विलेज तक पहुंच जाती है। कितनी बजे? 3:40 में, लगभग 4 बजे। 4 बजे उसकी मम्मी उठ भी जाएगी। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है। एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच करती है, मतलब क्योंकि अब बैठ करके उसका बदन अकड़ गया है, तो हम हाथ पैर को अकड़, जब सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं ना, तो उसको स्ट्रेच करती है वैसे ही अपने बदन को। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगैन। फिर कंडक्टर को देखती है और कहती है, चलो आपसे फिर मिलना होगा। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वो कहता ओके मैडम। व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस। जब भी बस में घूमने का मन करे आके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलिएगा। फिर से वो मजाक करता है। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, हंसते हुए वो बस से उतर जाती है। पहले जंप अप हुई थी, अब जंप डाउन। पहले बस पे चढ़ी थी, अब वो बस से उतर रही है, ठीक है। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, फिर वो अपने घर चली जाती है सीधी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt. तो वल्ली की एक आंट से वो बात कर रही होती है, उसकी मम्मी जग चुकी होती है। Then one from the South Street, ये वो वाली आंट है जो साउथ स्ट्रीट से आई है, उससे बात कर रही है। This aunt was a real chatterbox, ये तो बहुत chatterbox थी, talkative, chatterbox means talkative। ये आंट बहुत ज़्यादा बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, अपनी मुंह को कभी बंद नहीं करती थी, अगर वो बात करना शुरू कर देती थी तो अपने मुंह को बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बिन, सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। वली जैसे ही अंदर आती है तो वो आंट क्या बोलती है, और कहाँ गई थी आप? शी स्पोक कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने कैजुअली बोला कहाँ गई थी, लेकिन ये वैसा सवाल नहीं था जिसमें जवाब की अपेक्षा होती है, ये बस ऐसे ही सवाल था कि अरे कहाँ गई थी। So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो वली बस हंस देती है and her mother and aunt continued their conversation. Went on means continued. She continued her conversation. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. वली कहती है तुम सही कह रही हो, आप सही कह रही हैं। वली नहीं कहती, उसकी मदर कहती है आप सही कह रही हैं, दुनिया में कितनी ही चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया में हमारे ही बीच हो रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और फिर बोलती है कि कभी कभी हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं पर उसको समझते नहीं हैं, और कभी समझते हैं तो पूरी तरह नहीं समझते। तो दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो हमारे ज्ञान के जो ज्ञान है उससे बाहर है, हमारे ज्ञान में, हमारे संज्ञान में नहीं है। और कुछ चीज़ें हमारे संज्ञान में होते हुए भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं। किसी चीज़ को समझ भी लेते हैं तो पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। ओ यस ब्रिड वली, तो वली भी इस बात पे कहती हाँ। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, क्या क्या कहा तुमने। और वली ऐसा क्यों कहती है हाँ, क्योंकि वली ने आज ऐसी चीज़ देखी थी जो हमारे बीच होती है पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं। डेथ जो होता है वो हम सभी के बीच है, दुनिया है तो डेथ भी है, दुनिया है तो बर्थ भी है, लेकिन हम सब क्या बर्थ और डेथ के बारे में पूरी तरह से जानते हैं?
अगर हम डेथ के बारे में जानते भी हैं तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है हमको, वो ही चीज़ वली कहती है, क्योंकि उसने पहली बार आज उस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए कहती है ओ यस। तो उसकी मम्मी कहती है तुमने क्या कहा? ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ वॉट यू सेड। कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है, आपने जो कहा उसके साथ अपना एग्रीमेंट दिया है कि वाकई में दुनिया में बहुत चीज़ें होती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी सेड, शी इज सेड हर आंट। तो कहती है आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। मैं उस चीज़ों के बारे में बोल रही थी, उन चीज़ों के बारे में हाँ कह रही हूँ जो आप अभी बता रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं पर हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ये आंट कहती है जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, चिट मतलब बिट, एक छोटी सी लड़की है, देखो इसको। एंड जस्ट येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, फिर भी देखो बड़ों की बात में कैसे अपनी नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वेर अ ग्रोन अप लेडी, जैसे कि एक बहुत बड़ी लेडी हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वली मन ही मन स्माइल करती है और ये भी चाहती है कि वो जो आंट है और मदर है वो उसकी स्माइल ना देख लें। बट देन देर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, पर स्माइल को देखने का कोई चांस नहीं था उनके पास। क्या कोई चांस था? क्योंकि वो तो मन मन में स्माइल कर रही है ना। शी स्माइल टू हर सेल्फ। तो अपने मन में जब हम स्माइल करते हैं वो तो कोई नहीं देख पाता, वो वही चीज़ें हैं जो दुनिया में हमारे सामने हो रही होती हैं पर हम उनको देख नहीं पाते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह से इसी दुनिया में बच्चे होते हैं, छोटे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, हमारे ही बीच मृत्यु होती है, जन्म होता है, पर हर किसी को मृत्यु का, जन्म का कोई आभास नहीं होता है जब तक कि पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो। सो शी सेज दैट nobody can understand what she has done, nobody can know where she had been, only she knows it herself. So this is an illustrated work by R.K. Lakshman. I think you understood this lesson now clearly. If still you have doubt, then we can sort it out in our next class.